Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the online class of science. I hope you all are fine. I am your science teacher. Today we are going to discuss about the solid, liquid and gases new topics. Let me recall the previous topic. All of you have know that the anything or everything in the universe is made up of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. ठीक है, हर वो चीज़ जिसका वजन होता है और जगह घेरती है is called matter. Matter is made up of tiny particles. ठीक है, all of you have know that we have three states of matter. We have four states of matter, but here we discuss just three states. The first one is solid, the second one is liquids, and the third one is gases. Solids, in solid state the particles are closely packed together, so that's why they have definite shape and they cannot move. They just show vibration. ठीक है, they cannot move because of the tightly packed particles, so that's why they cannot flow. So they have definite shape and have a definite volume. ठीक है, अच्छा, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी हाई. ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दैट्स वाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी ग्रेट. ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द लिक्विड्स. In the liquid, the particles in the liquid are not packed together so closely. The forces of attraction between the particles is not so strong. The particles move about more freely. The space between the particles are greater, so that's why the liquids can flow. Or we can pour it into any shape of container. ठीक है, हम इसको कई शेप में भी डाल सकते हैं, so that's why they have a definite volume but do not have a fixed shape. ठीक है, now come towards the gases. The particles in the gases are not packed closely together. The forces holding the particles together are very weak. This means that the particles are moving about all the time. They bounce off each other and shoot off in all directions. The spaces between the particles are much larger, so that's why the gas particles move very far apart from each other and they can easily move. Okay, now come towards the next topic. Our today's topic is about the changes of states. Let me first tell you about some definitions. The first one is melting. All of you have know that the matter changes from one state to another state. Okay, now come towards the melting. That what is melting? The process by which solid changes to a liquid is called melting. आपने आइस को देखा हुआ है ना, आइस जब मेल्ट हो के वो लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. So the next one is the evaporation. The process by which a liquid changes into a vapor is called evaporation. हम जब वाटर को बॉयल करते हैं वो हमारे पास वाटर वेपर की फॉर्म में बॉयल होके जाते हैं, so this is called the evaporation. The process by which a gas changes into a liquid on cooling is called condensation. वापस जब आप लोग गैस जब हमारे पास चेंज हो लिक्विड में चेंज होता जाते हैं कूलिंग करने पे, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. ऑल ऑफ यू हैव नो दैट अगर आपने घर में कोई ममा ने खाना वगैरह पकाया हो और आप लोग उसके लिड को जब उठा के देखें तो उसके ऊपर पानी सा जमा हुआ होता है, सो दिस इज़ द कंडेंसेशन प्रोसेस. ठीक है, इनफैक्ट गाड़ियों में भी जब आपके गाड़ी में आप कुछ लिखते हो शीशे पे फोगी सा बाहर पानी की तरफ आ जाते हैं, so this is the condensation process. The process by which a liquid changes into solid is called freezing. आप सबको पता है कि जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होता है, so this process is called the freezing process. नाउ कम टूवर्ड्स द चेंजेस ऑफ स्टेट्स कि कैसे सॉलिड जो है लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में हमारे पास चेंजेस होते रहते हैं. हमारे पास थ्री स्टेट्स हैं, द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दे कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. हमारे पास होते रहते हैं. जैसे कि हमारे पास सॉलिड आइस है, उसको मेल्ट करने पे वो हमारे पास लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है. इस तरह वाटर जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस जब उसमें हो जाता है, उसको बॉयल करने से इवेपोरेशन वो गैस में चेंज हो जाते हैं. गैस को हम वापस जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो हमारे पास वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर दे तो वो वापस हमारे पास सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. Okay, so this is the diagram of that solid changes into gas, solid into liquid, liquid into gas, gas into again liquid, and liquid into again solid. ठीक है,
सॉलिड फैक्ट, हाउ डू सॉलिड्स एंड लिक्विड चेंजेस स्टेट, सॉलिड्स और लिक्विड कैसे चेंज स्टेट कर सकते हैं, अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं. द चेंज इन स्टेट in which a liquid becomes a solid is called freezing. All of you have know that freezing का मैंने भी बता दिया आपको कि जब हमारे पास लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वाटर हमारे पास आइस में चेंज हो जाता है, सो दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग प्रोसेस. ठीक है. How do solids and liquids change state? When the solid is warmed, its particles gain energy and speed up. जब हम उसको वार्म करते हैं, कोई भी सॉलिड्स को, आइस को, कोई भी हमारे पास मटेरियल हो, उसको हम वार्म करते हैं तो वो एनर्जी गेन करता है और पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो जाती हैं. एंड द अट्रैक्शन बिटवीन दैम डिक्रीजेज, उनकी अट्रैक्शन कम होती जाती है पार्टिकल्स के बीच में. सो that's why they slide past one another, वो दूसरे के स्लाइड करते हैं. द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड दिस चेंज इज कॉल्ड द मेल्टिंग. ओके. अब यहाँ पर एवापोरेशन का आ गया कि कैसे हमारे पास जो है लिक्विड को हम जब बॉयल करते हैं तो वो हमारे पास वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द एवापोरेशन. ये गर्म करने से होता है और इसमें भी पार्टिकल्स एनर्जी गेन करके जो है वो एवापोरेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. हाउ डू लिक्विड्स एंड गैसेस चेंज स्टेट? लिक्विड और गैसेस कैसे चेंज कर स्टेट को अपने चेंज कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग प्रोसेस. A rapid change from a liquid to a gas or vapor is called boiling. As I have told you कि हमारे पास जो वाटर को हम लिक्विड को जब बॉयल करते हैं तो वो वेपर में चेंज कन्वर्ट हो जाता है. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड द बॉइलिंग प्रोसेस. ठीक है. वो भी हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी. जब उसको हम कूल करते हैं वो एनर्जी लूज़ कर देते हैं और एनर्जी लूज़ करने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वाटर वेपर्स जो है वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. ओके. नाउ दिस इज़ द डायग्राम पार्टिकल्स अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड एंड as you have know that the solid particles are closely packed together, so that's why they just vibrate. ठीक है. ये सिर्फ वाइब्रेट हमारे पास होते हैं. द लिक्विड में हमारे पास फ्रीली मूव करते हैं और गैस में हमारे पास बहुत ये दूसरे से दूर होते हैं और बहुत फ्रीली मूवमेंट हमारे पास गैसेस में होती रहती है. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आ जाता है. फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज दैट अल्टर्स द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस बट डज नॉट चेंज इट टू अनदर सब्सटेंस. ये हमारे पास चेंजेस तो इसमें एज सच फिजिकली आ जाती हैं लेकिन इंटरनली इसमें कोई चेंज नहीं आता. ठीक है. इट चेंजेस शेप और साइज, इट डिजॉल्व्स, इट चेंजेस फेजेस. फॉर एग्जांपल फ्रीजेस, बॉयल्स, एवापोरेट्स, कंडेंसेशन. एग्जांपल मेकिंग ऑरेंज जूस. ऑरेंज को जहाँ स्क्वीज करके उससे जूस निकाल देते हैं तो वो जूस तो वही रहता है ना, पार्टिकल्स तो चेंज नहीं होते, सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है. ठीक है. लाइक अगर एग को हम बॉयल कर दें, ठीक है, तो एग तो वही रहेगा ना, उसके इंटरनल मटेरियल तो वही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी. ठीक है. इस तरह हमारे पास और भी एग्जांपल है. कटिंग पेपर, अगर पेपर को हम कट करके किसी तरफ से भी, तो ना क्लोथ्स को कटिंग करते हैं, हम कपड़े बनाते हैं, उसकी शेप बना देते हैं ना शर्ट्स की फॉर्म में, जिस तरह भी डिज़ाइन हमें चाहिए होता है, तो उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ जाता है लेकिन मटेरियल जो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं. सो हमारे पास इस तरह वाटर की एग्जांपल अगर आप ले लें, चाहे आप वाटर को फ्रीज करके आइस फॉर्म में ले आए, फिर उसको वापस लिक्विड फॉर्म में ले जाए, उसको फिर वो गैस फॉर्म में भी आ जाए हमारे पास. ठीक है. वाटर वेपर्स में रहता तो वो पानी ही है ना. सो दिस इज़ द फिजिकल चेंज बाय अपीयरेंस जो इसमें चेंज आती हैं. ठीक है. वुड को हम डिफरेंट डिज़ाइंस में कट कर सकते हैं. ठीक है. वो भी हमारे पास अगर इसमें से फिज़िकल चेंजेस आती हैं. फॉर एग्जांपल हम चेयर बना दें, उसी वुड से हम टेबल बना दें, तो उसमें फिजिकली चेंज आ सकते हैं लेकिन उसमें हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो सेम ही रहेंगे. नाउ व्हाट इज़ केमिकल चेंज? केमिकल चेंजेस आर चेंजेस मैटर अंडर गोज व्हेन इट बिकम्स न्यू और डिफरेंट मैटर. केमिकल चेंज जब उसको कहते हैं जब हमारे पास एक चीज़ से न्यू कोई डिफरेंट और चीज़ बन जाती है, कोई और फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है. इट बर्न्स, टेम्परेचर चेंजेस विदाउट हीटिंग कूलिंग. ठीक है. हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता विदाउट हीटिंग और कूलिंग से. इट बबल्स, हमारे पास जो मैं गैस हम कह सकते हैं. इट चेंजेस कलर्स.
It also change color. It also forms the precipitates. Now these are the examples of the chemical change. हमारे पास कैसे chemical changes आती हैं. Fireworks की अगर हम example लें, a chemical change occurs when fireworks are used. Fireworks are जो आतिशबाजी हम जिसे उर्दू में कहते हैं, fireworks are made of metals such as magnesium and copper. Magnesium और copper से मिल के बना होता है, ठीक है. These changes chemically as they light up the sky. इसमें केमिकल चेंज आते हैं, दैट्स वाई हमें स्काई में जो है इसके डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है ना. अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ की, जैसे हम पेपर बर्न की एग्जांपल ले लें, पेपर को हम बर्न करें, उसको जला दें, तो वो हमारे पास एश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी सारी मैटर फॉर्म पूरी चेंज हो जाती है, हमारे केमिकल अपीयरेंस उसका चेंज हो जाता है, ठीक है. इस तरह हम अगर किसी चीज़ की भी एग्जांपल ले लें, शुगर को अगर हम टी में डिज़ोल्व कर दें या वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो उसका पूरा केमिकल चेंज हो जाता है, वो पूरा चेंज हो जाता है केमिकली हमारे पास, ठीक है. इस तरह अगर हम लॉक्स को जला दें, लकड़ियों को जला दें, ठीक है, तो वो हमारे पास एश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. तो उसमें भी हमारे पास वापस तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना वुड में, तो दिस इज़ कॉल्ड द केमिकल चेंज. टोस्ट बर्निंग हमारे पास जो ये बर्न आ जाते हैं, ठीक है. दीज आर द केमिकल चेंजेस. मेटल रस्टिंग हमारे पास जो जंग जो लग जाते हैं, दीज आर द केमिकल चेंजेस. Candle burning are also the chemical changes. Now what is the difference between chemicals and physical changes? Chemical changes are not easily reversed, ठीक है. अगर इसको हम अगर एक और नाम भी दें, irreversible change. Chemical change is also called irreversible change and physical change is also called the reversible change, ठीक है. केमिकल चेंज में हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स बनती हैं और फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बनती, ठीक है, उसकी जस्ट शेप चेंज हो जाती हैं, ठीक है. इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं. केमिकल में वुड बर्निंग और फिजिकल में आप आइस मेल्टिंग की एग्जांपल दे दें. सो दीज आर ऑल अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. hope you all understood it. Now come toward the exercise. The first one is choose the correct answer. You have to do it by your own self. Now the first one is which of the following is not a state of matter. All of you have know that we have 3 states of matter. तो जो हमारे पास नहीं है state of matter, you have to encircle this one option, okay, that one option. Now the second one is everything on earth is made up of tiny particles called matter. आप सबको पता है कि matter से बने हैं, but here 4 names are mentioned. So all of you have know that all the matter is made up of tiny. आप सबको पता है टाइनी किस चीज़ से बना है. इज इट पार्टिकल्स, पार्ट्स, स्पेस, सॉलिड्स, ठीक है. नंबर 3, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स आर मेड अप ऑफ. ऑल ऑफ यू हैव नो दैट कि वाटर वेपर, आइस और वाटर किस चीज़ से बने हैं. वाटर पार्टिकल्स से बने, सॉलिड से, लिक्विड्स या गैस से. Which type of matter has a fixed shape and a fixed volume? ये भी आपको पता है. When wood is burned and turns into ash, what type of change has been taken place? ठीक है, वो हमारे पास कौन सा चेंज आ जाते हैं. कैन वी चेंज इट अगेन इनटू वुड? क्या हम एश को वापस वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं. सो दीज आर द इरिवर्सिबल चेंज. आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा चेंज है. फिल इन द ब्लैंक्स. मैटर इज मेड अप ऑफ डैश. ऑल ऑफ यू हैव नो कि मैटर हमारे पास किस चीज़ से बना है. द पार्टिकल्स इन अ डैश आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर. ये भी आपको पता है, ठीक है. द डैश इन अ लिक्विड आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर. दे कैन फ्लो, जो फ्लो करते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता है. लिक्विड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑल द मेटल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी. हमारे पास जितने भी मेटल चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किस चीज़ से बने? यू हैव टू आंसर इट. इन अ गैस द डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर. ठीक है, हमारे पास पार्टिकल्स में क्या होता है? पार्टिकल्स में बीच में आप सबको पता है क्या होता है. सो यू हैव टू फिल द ब्लैंक. ओके, मैच द कॉलम्स. कॉलम ए, कॉलम बी. अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. अब जब नई चीज़ बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अ चेंज ऑफ स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. सिर्फ उसके फिजिकल उसमें चेंज आ जाता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती. सो आप आंसर कर सकते हैं. Everything in the world that has mass and occupies space is called. All of you have know. Now the next one question is about mark these sentences with tick or cross. You have to tick for true and cross for false. Particles move. Is it true or false? Particles in a gas are packed tightly together. gas में जो है particles tightly packed होते हैं. क्या उसकी shape होती है? A liter of water is more when it is in a 5 liter container. अगर हम 1 लीटर वाटर 5 लीटर के कंटेनर में डालें, कोई बर्तन में डालें, तो क्या पानी ज़्यादा हो सकता है? Particles in orange juice are packed less closely than those in orange ice.
लोली, ठीक है, जो लॉलीपॉप्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कहते हैं कि जूस जो है उसमें हमारे पास पार्टिकल जो है वो लेस जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड हमारे पास ऑरेंज लॉलीपॉप ले लें या कुछ भी ले लें, ठीक है। नंबर 5 इज़ आइस मेल्ट्स इनटू अ गैस। आइस मेल्ट्स ओके गैस में कन्वर्ट होता है कि नहीं? इज़ इट ट्रू और फॉल्स? यू हैव टू आंसर इट बाय योर ओन सेल्फ. So it's all about today's topic. Hope you understood it. Uh, Now come towards the homework. Your homework is you have to do the exercises question number 1, 2, 3, 4 जो अभी हमने डिस्कस किया है on book page 65 and 66 and also the concept check on book page 61 and 64. Hope you all understood the lecture. Goodbye and Allah Hafiz.